हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है मर्यादा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मर्यादा की अदा। तो आज का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज है एक बर्थडे स्पेशल वीडियो, बट ऐसा नहीं है कि हम इस वीडियो में सिर्फ बर्थडे रिलेटेड बात ही करेंगे। हम आज इसमें स्टाइलिंग भी सीखेंगे। जो मैंने साड़ी पहनी हुई है मैं आज आपको उसको स्टाइल करना बताऊँगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न स्टाइलिंग की अदा विद मर्यादा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओके, या प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई डोंट नो इफ यू कैन रियली hear the sound of the rain, but when I'm shooting this video it's raining really beautifully and the people who know me know that मेरा और बारिश का रिलेशनशिप बहुत पुराना है। जब भी मेरी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली होती है, कोई इम्पॉर्टेंट डे होता है, इट हैज़ टू रेन। सो इफ़ इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड इट्स नॉट रेनिंग देन आई नो कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स वेल एंड गुड एंड वी कैन स्टार्ट द वीडियो। सो पिछले साल मैंने अपने बर्थडे पे अपनी डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग्स रही हैं लाइफ में, जो मैंने लाइफ से सीखा है। और ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ज़िंदगी जीने का तरीका बता रही हूँ। इट्स जस्ट दैट इट्स माई स्पेस। सो आई हैव क्रिएटेड माई चैनल विद द थॉट दैट आई हैव टू बी माई सेल्फ ऑन दिस चैनल एंड आई डू समथिंग विच आई रियली लव। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ आवर स्पेस। दिस इज़ द स्पेस वेयर आई पोर माई हार्ट आउट। सो या आई एम गोना बी शेयरिंग सम पॉइंट्स और उसके बीच में मैं आपको बताऊँगी कि ये सारी मैंने कहाँ से ली, कैसे स्टाइल करी। सो या ओके, सो आई हैव माई डायरी विद मी बिकॉज आई फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू राइट एवरीथिंग। सो ओके, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड आई विल ऑल्सो एड द कोटेशन समवेयर ओवर हियर और हियर कि अगर आपको मैं जो बोल रही हूँ समझना है सो यू कैन रीड एंड सी फॉर योरसेल्फ। ओके, so the first point is believe in God, have faith in him, you will find ways to come out of dark. If you do not have faith in something, don't do it. Third point, be kind even to the people who are not kind to you. Fourth, acceptance is the key. For healing, you have to accept that you are hurt. Fifth, forgive people. It makes your own life much easier. Sixth, there is and there will never be somebody as loving, caring, nurturing as your parents. Hold them tight. Stop comparing. We are not in any race. I say it again. Stop comparing. 8th point. There is nothing called as coincidence. Everything happens for a reason. 9th, be grateful each day, every day. 10th, life is precious. You have got one. You are here for a reason. Find it. 11th, stop doing things just to impress people. 12th, never cheat. Never hurt people's feeling. Karma is a bitch. It will not spare you. 13th, if you have one relationship other than your family in which you are respected, corrected, loved, cared, appreciated, and that person stands by you through thick and thin, you are really lucky. Accept that there are certain things beyond your control. Leave them to God. 15th, forgive yourself. This is the hardest, but forgive yourself for things you did that you didn't want to do. Hurting people, bitching, saying sorry if you can. Don't make same mistakes again. Forgive yourself. 16th, be empathetic. The world needs it. If you don't have something good to say, don't fake it. Don't be mean. Just be quiet. 17th, not everybody is gonna like you. Some people will always have issues with you. So stop trying to please everyone. 18th,
If something doesn't feel right, it is not right. Energies never lie. 19th. If you don't mean it, don't say it. 20. Do not settle for less. Deep down, you know what you deserve. Do not settle for less. 21. There is always a way out. हर ताले की एक चाबी होती है, हर रात का एक सवेरा होता है. 21. Your hard work, your knowledge, your kindness will never go waste. Stay honest. 22. If you receive what you prayed for, return the favor to the world. Do something to make people's life easier. Do something which people will remember you in their hearts even after you are long gone. Last but not the least, 23rd point. Do not force people, relationship, feelings and things. तो ये जो साड़ी मैंने अभी पहनी है इसको बोलते हैं लहरिया साड़ी, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो वेज वाला है, इसलिए लहरिया साड़ी. और ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है क्योंकि वहीं से टाई एंड डाई का काम स्टार्ट हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो या इट इज़ अ वेरी फेमस काइंड ऑफ साड़ी इन राजस्थान. और इस साड़ी की मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि ये ब्लैक एंड कलर है. मैंने लहरिए को ब्लैक कलर में ज़्यादा नहीं देखा है. सो माई मॉम रिसेंटली विजिटेड राजस्थान एंड शी पिक्ड इट अप फ्रॉम अ लोकल स्टोर, लोकल शॉप, which is I think the best part of the saree, because I really love picking these kind of state special sarees or fabrics from local shops. I think that's just me. So yeah, it is black in color and I think that is what makes it different from other lehariya sarees, because lehariya is a very traditional fabric and all of us associate lehariya or bandhani sarees with traditions. So when I found it in black color, I knew that I have to style it in an Indo-Western way. I have to wear this sari as a sari, but at the same time I want to keep it really Western. तो मैंने उस चीज़ को वेस्टर्न रखने के लिए क्या किया है, मैंने इसका सेम ब्लाउज़ स्टिच नहीं कराया और मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज़ लिया है. एज़ यू कैन सी ओवर हियर इन द वीडियो कि ये जो ब्लाउज़ है काफ़ी वेस्टर्न है. इट्स लाइक अ क्रॉप टॉप. इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स डिटेलिंग है विच आई रियली लव. और तो इसीलिए मुझे लगा कि ये ब्लाउज़ इस साड़ी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि एकदम प्लेन ब्लाउज़ है, साड़ी में ब्लैक और वाइट है. सो दिस विल कॉम्प्लीमेंट द साड़ी रियली वेल. और मेरा जो पर्पज़ है कि मैं इस साड़ी के ट्रेडिशनल होते हुए भी इसको एक वेस्टर्न लुक दूँ, सो दैट हर एज ग्रुप की लड़की इसको पहन सके, वो मेरा फुलफ़िल हो जाएगा. सो या आई हैव पेयर्ड इट विद दिस ब्लाउज़. और इस साड़ी को बांधते वक्त मैंने ध्यान रखा कि मैं इसको एकदम टाइटली टाई ना करूँ, थोड़ा सा लूज़ छोड़ दूँ, सो दैट देयर इज़ अ स्ट्रैटेजिक स्किन शो. दिस इज़ अ वेस्टर्न वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, एटलीस्ट दैट व्हाट आई थिंक. सो या आई हैव वॉर दिस साड़ी लाइक दिस. ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ एकदम वेस्टर्न है, तो मैंने सोचा कि जो ज्वेलरी है उसको हम थोड़ा सा इंडियनाइज़ कर सकते हैं. तो हाथों में मैंने सिर्फ एक ही रजवाड़ी कड़ा पहना है, जो कि अगेन मैंने अपनी मॉम से राजस्थान से मंगवाया था. और जब वही ला रही थी तो वो मुझसे पूछ रही थी कि वाई डू यू वांट टू हैव सच अ बिग बैंगल, एंड आई वाज लाइक नो, आई थिंक आई एम गोना यूज़ इट समवेयर. And I think with this saree it's going pretty well because of this gota this saree have. इसका जो गोटा है साड़ी का वो भी गोल्डन है. सो एंड आई हैव वोन जस्ट वन कड़ा. मैंने यहाँ पे बैंगल्स पहनना ज़रूरी क्यों नहीं समझा. पहली बात क्योंकि मैं इस लुक को थोड़ा वेस्टर्न रखना चाहती थी. दूसरी बात क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ थोड़े से छोटे हैं, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बैंगल्स पाइल अप कर लेती हूँ उसकी वजह से वो और ज़्यादा छोटे लगते हैं. इफ़ यू आर समबडी जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप बैंगल्स पहनें, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा इस साड़ी के साथ. बट मैंने यहाँ पे एक कड़ा पहनना ज़्यादा ज़रूरी समझा. और कानों के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं बड़े ईयरिंग्स पहनूँ, छोटे ईयरिंग्स पहनूँ या स्टड्स पहनूँ. सो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ समझ में आई, मुझे लगा कि ना ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे. लेट्स गो विद द मिडल ऑप्शन. तो मैंने ये वाले यहाँ पे ईयरिंग्स पहने हैं और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सेसराइज नहीं करा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस लुक का जो पूरा अटेंशन है वो साड़ी पे आए और बाकी की जितनी सारी चीज़ें हैं वो लुक को बिल्ड करने में हेल्प करें, ना कि लुक को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करें. इसीलिए जो मैंने दो एक्सेसरीज़ पहनी हैं, दोनों को ध्यान में रखा है कि मैं दोनों को गोल्डन कलर में पहनूँ. और मैं थोड़ा बिंदी के लिए भी कंफ्यूज थी कि मुझे बिंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए. बट देन आई वाज लाइक नो, लेट मी पुट अ बिंदी. आई थिंक दिस इज़ गोइंग रियली वेल विद द साड़ी.
सो इस साड़ी को आप एज अ वेडिंग गेस्ट पहन सकते हैं, आप अपने वेडिंग ट्रूज़ों में इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसको डेफिनेटली अपने फेयरवेल पे पहन सकते हैं अगर होता है तो। आई एम सॉरी, आई फील यू गाइज। सो आप डेफिनेटली इसको अपने फेयरवेल पे पहन सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 लाइट ईजी ब्रीजी साड़ी और बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप बहुत ही क्लासी शीक पुट टुगेदर लग सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे पॉइंट्स में से आप कितने पॉइंट्स से रिलेट कर पाए वो भी मुझे बताइएगा। विच वॉज़ योर काइंड ऑफ फेवरेट पॉइंट, प्लीज़ कॉमेंट बिलो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। या चलो मत करो यार, मर्जी है तुम्हारी। आई विल मीट यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, एंड नमस्ते एंड जय हिंद।